Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Chapter 5. A page in film news about Greta Garden. They've never talked about Greta Garden. He never talked about her visit to the corner shop. One day, Anna asked him about the film star. How do you know Greta Garden? Said Anna. Is she a friend of yours? I don't want to talk about her, Dave replied. She was a special order customer. Don't ask. So Anna didn't ask any more questions. She didn't ask about Greta Garden's special order, and she didn't ask about the rings. Dave never talked about Greta Garden. देव ने फिर कभी ग्रेटा गॉर्डन की बात नहीं की या उस बारे में कोई भी बात नहीं की. He never talked about her visit to the corner shop. उसने इस बारे में भी बात नहीं की कि ग्रेटा गॉर्डन उसकी दुकान पर आई थी. One day, Anna asked him about the film star. एक दिन आना उससे पूछ ही लेती है उस फिल्म स्टार के बारे में. How do you know Greta Garden? आप कैसे जानते हैं ग्रेटा गॉर्डन को? Said Anna. आना कहती है. Is she a friend of yours? क्या वो आपकी दोस्त है? I don't want to talk about her, Dave replied. मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. She was a special order customer, don't ask. वो स्पेशल मखसूस गाहक थी, मखसूस ऑर्डर वाली गाहक थी, तो ये मत पूछो. So Anna didn't ask any more questions. तो आना ने फिर और कोई सवालात नहीं किए देव से. She didn't ask about Greta Garden's special order. आना ने ये भी नहीं पूछा था कि वो कौन सा ऑर्डर था जो ग्रेटा गॉर्डन ने दिया था. वो कौन सा स्पेशल ख़ास ऑर्डर था जो ग्रेटा गॉर्डन ने दिया था. और शी डिडंट आस्क अबाउट द रिंग्स. और उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी रिंग यानी उसकी जो अंगूठियाँ थी वो कहाँ गई. ना उसने ये पूछा कि उसने क्या ऑर्डर किया था, और ना ये पूछा कि उसकी अंगूठियाँ कहाँ गईं, क्योंकि देव उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था. Anna kept her promise. She never told anyone about the Greta Garden. Soon it was spring. Anna and Dave were busy. Mr. Hart brought lots of flowers to the corner shop. Anna sold them to the tourists. There were lots of tourists that year. In May, Peter asked Anna to marry him. She said yes. They became engaged. They planned to get married in the following year. Now they needed money, so they work hard. And on Saturdays, Peter played football or cricket, and Anna often went to the cinema in Lydney. Anna kept her promise. Anna ने अपना वादा पूरा किया. She never told anyone about Greta Garden. उसने किसी को ग्रेटा गॉर्डन के बारे में नहीं बताया. Soon it was spring. और जल्दी स्प्रिंग आ गया. Anna and Dave were busy. आना और देव मसरूफ़ हो गए. Mr. Hart brought lots of flowers to the corner shop. और मिस्टर हार्ट बहुत से फ्लावर ले आए दुकान में. Anna sold them to the tourist. और आना ने वो
बेचे मुसाफिरों को और उन लोगों को जो वहाँ घूमने आए थे। देयर वर लॉट्स ऑफ टूरिस्ट दैट ईयर। उस साल बहुत बहुत ज़्यादा मुसाफिर, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले लोग आए थे। इन मई के महीने में, यानी मई के महीने में, पीटर आस्क आना टू मैरी हिम। पीटर जो है वो आना को प्रपोज करता है या उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शी सेड यस, और वो कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। दे बिकेम इंगेज, और उनकी मंगनी हो जाती है, वो इंगेज हो जाते हैं एक दूसरे से। दे प्लान टू गेट मैरिड इन द फॉलोइंग ईयर, और वो प्लान बनाते हैं, वो प्लान बनाते हैं कि हम जल्द ही आने वाले सालों में शादी कर लेंगे। नाउ दे नीडेड मनी, अब उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि शादी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सो दे वर्क हार्ड, तो वो सख्त मेहनत करते हैं। ऑन सैटरडेज़, और हफ्ते वाले दिन, पीटर प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट। पीटर की आदत थी हर हफ्ते को वो हफ्ते वाले दिन या तो वो फुटबॉल खेलता था या क्रिकेट खेलता था। एंड आना ऑफन वेंट टू द सिनेमा इन लिडनी, और आना अक्सर व बशतर, यानी अक्सर ही सैटरडे वाले दिन सिनेमा जाती थी लिडनी में। सिनेमा यानी फ़िल्म देखने, मूवी थिएटर। He enjoyed sports. She loved watching films. On one day, Anna was reading the film news. This was the magazine about the film stars. She turned the pages. There was a picture of Greta Garden. Greta Garden will be star in Beautiful Woman. The star of Beautiful Woman was Jonna Lee. But Miss Lee has broken her arm. I don't know what happened, said Miss Lee. I was in my bedroom. I slipped and fall. Greta Garden will now be the star of Beautiful Woman. I'm so lucky, Greta told us yesterday. I was always wanted the part, but I always wanted the part. I can't believe it. He enjoyed sports. पीटर जो था वो enjoy करता था खेल। And she loved watching films, और आना को मोहब्बत थी फिल्में देखने से। One day, एक दिन, आना was reading the film news. एक दिन आना पढ़ रही थी न्यूज़, खबरें फिल्मों की। This was the magazine about film stars. ये मैगज़ीन था जो एक्टर और एक्ट्रेस का, यानी ऐसे जो फिल्में बनाते हैं उनका मैगज़ीन था। यानी इसमें सिर्फ फिल्में स्टारों की बातें होती हैं और किसी की नहीं होती। शी टर्न द पेजेस, वो पेजेस पलटती है। देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ ग्रेटा गॉर्डन, और वहाँ एक बड़ी सी ग्रेटा गॉर्डन की पिक्चर होती है तस्वीर में, और लिखा होता है ग्रेटा गॉर्डन विल स्टार इन ब्यूटीफुल वुमन। उस पेज जिस पर तस्वीर लगी होती है उस पर लिखा होता है ग्रेटा गॉर्डन ब्यूटीफुल वुमन, जो नई फिल्म आ रही है, बहुत ही पॉपुलर फिल्म, आने वाली सबसे बेहतरीन फिल्म में वो स्टार बनेंगी, यानी वो एक्ट्रेस का रोल अदा करेंगी। दिस इज द स्टार ऑफ ब्यूटीफुल वुमन वॉज जॉना ली। लेकिन इस फिल्म यानी ब्यूटीफुल वुमन जो फिल्म थी, उसकी जो स्टार थी, जो पहले स्टार जो कास्ट की थी, वो थी जॉना ली। और बट मिस ली हैज़ ब्रोकन हर आर्म, लेकिन मिस ली जो थी उनका हाथ टूट गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड,
वो लिखती है, मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। सैड मिस ली, आई वॉज इन माई बेडरूम, मैं अपने बेडरूम में थी, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। आई स्लिप्ड, मैं फिसली, एंड फॉल, गिरी, और मेरा हाथ टूट गया। ग्रेटा विल नाउ बी द स्टार ऑफ ब्यूटीफुल वुमन। और फिर नीचे लिखा हुआ था कि अब इस फिल्म की जो हीरोइन होंगी वो कौन होंगी? ग्रेटा गॉर्डन। और ग्रेटा जो है वो कहती है, आई एम सो लकी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। टोल्ड अस यस्टरडे, अखबार वाले कहते हैं, मैगज़ीन वाले कहते हैं, ग्रेटा गॉर्डन ने हमें ये बताया कल कि वो कहती हैं, आई एम सो लकी, कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आई हैव ऑलवेज़ वांटेड द पार्ट, मैं हमेशा चाहती थी इस फिल्म का हिस्सा बनना। आई कांट बिलीव इट, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी हूँ। Anna was pleased. What a surprise! Beautiful Woman was going to be a big film. And Anna wanted to tell Peter about Greta, but she kept her promise. She didn't tell anyone, but she did show film news to Dave Salatin. Look, Dave, she said, here's a story about Greta Gordon. Isn't it great? She's got the big part in Beautiful Woman. Dave looked at the magazine. I don't know anything about films. Anna was pleased. Anna बहुत खुश होती है. What a surprise! कितनी ज़बरदस्त बात है, कैसा सरप्राइज़ है ये, कितना खूबसूरत सरप्राइज़ है। ब्यूटीफुल वुमन वॉज गोइंग टू बी अ बिग फिल्म। ब्यूटीफुल वुमन जो फिल्म है वो बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत पॉपुलर फिल्म होने वाली है, क्योंकि उसको लिखने वाला, उसका अदाकार, उसको लिखने वाला बहुत मशहूर है। उसके जो गाने हैं वो बहुत अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे, क्योंकि फ़िल्म का प्रीव्यू देख के पता चल जाता है फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ब्यूटीफुल आना क्या सोचती है या कहती है, ब्यूटीफुल वुमन वॉज गोइंग टू बी अ बिग फिल्म, कि ब्यूटीफुल वुमन बहुत बड़ी फिल्म बनेगी और बहुत हिट होगी। आना वांटेड टू टेल पीटर अबाउट ग्रेटा। आना बताना चाहती थी पीटर को ग्रेटा के बारे में, बट शी केप्ट हर प्रॉमिस, लेकिन वो अपना वादा याद रखती है और अपना वादा पूरा करती है और किसी को कुछ नहीं बताती। She didn't tell anyone, वो किसी को कुछ नहीं बताती। But लेकिन she did show film news to Dave Salatin. लेकिन वो न्यूज़ जो मैगज़ीन पेपर होता है, वो जो पर्चा होता है फिल्म न्यूज़ वाला, वो शो करके दिखाती है देव को। देखो देव, लुक देव, वो मैगज़ीन में तस्वीर वाला पेज दिखाती है देव को और बोलती है, लुक देव, देखो देव। She said, here's a story about Greta Gordon. यहाँ एक कहानी छपी है ग्रेटा गॉर्डन के हवाले से। Isn't it great? क्या ये ज़बरदस्त कहानी नहीं है? She got a big part in Beautiful Woman. क्या ये बहुत ज़बरदस्त कहानी, बहुत ज़बरदस्त बात नहीं है कि उसको मौका मिल गया इतनी बड़ी फिल्म में, जिस फिल्म का नाम है ब्यूटीफुल वुमन, और उससे बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हिस्सा मिला है, या बड़ा अच्छा किरदार मिला है इस फिल्म में, क्योंकि वो हीरोइन है फिल्म की तो अच्छा ही किरदार होगा। देव लुक एट द मैगज़ीन। देव मैगज़ीन की तरफ देखता है और कहता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म्स। मुझे फ़िल्मों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। ही सैड, वो कहता है, मुझे फ़िल्मों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। Is Greta Gordon a big star? Anna laughed. क्या ग्रेटा गॉर्डन कोई बड़ी एक्ट्रेस है, बड़ी स्टार है, मशहूर पर्सनालिटी है? क्या बहुत मशहूर, क्या बहुत बड़ी अदाकारा है ग्रेटा गॉर्डन? आना हंसती है। बिग स्टार, बड़ी स्टार? यस शी इज़, शी इज़ टेरिफिक। हाँ, वो बहुत बड़ी अदाकार है, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है। देव डिडंट सीम इंटरेस्टेड, लेकिन देव इस चीज़ में दिलचस्पी
नहीं रखता या आना देखती है कि उसके चेहरे पर दिलचस्पी नहीं है इस बारे में, किस बारे में कि ग्रेटा गॉर्डन कोई बिग स्टार है। आई होप शी इज़ हैप्पी विद हर बिग पार्ट वॉज ऑल ही सैड। वो सिर्फ इतना बात कहकर ख़त्म कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ वो खुश होगी अपने इस हिस्से को, इस बड़े हिस्से को पाकर, यानी जो इसको हिस्सा मिला उससे वो खुश होगी। सिर्फ ये जवाब देता है, उसे कोई सरोकार नहीं होता वो कितनी बड़ी अदाकारा है या वो कितना मशहूर हो गई है, कि उसको कितना हिस्सा मिल गया, कौन सी फ़िल्म इतनी मशहूर मिल गई, उसको कोई इससे सरोकार नहीं था। वो बस उसे विश करता है, मतलब दुआ देता है एक तरह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खुश रहेगी, वो खुश होगी इस चांस को मिलने की वजह से। यहाँ था चैप्टर 5 और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर 2 दिन बाद इसकी एक वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि 15 चैप्टर हैं, अभी 5 चैप्टर हुए हैं। ये लव स्टोरी भी है और बहुत इसमें बहुत आगे मज़ा आएगा आपको। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मिस्ट्री अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी है इस कहानी में, लेकिन आप बहुत इन्जॉय करोगे। अगर इन्जॉय नहीं भी करें तो आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होगी। इसमें बहुत से ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस कहानी के ज़रिए हम सीख सकते हैं, लेकिन ये जब भी पॉसिबल होगा जब हम इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 दफ़ा देखें, गौर से सुने, जुमले को फ़ोकस करें, जुमले पे फ़ोकस करें और उसकी उर्दू पे फ़ोकस करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह क्या लफ्ज़ किस वक्त कैसे कहा गया है। क्योंकि कहानी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं जब इंटर में आया था तो मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता था। आई वॉज़ नॉट एबल टू रीड उर्दू, रियली इट्स ट्रू। सो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड दानिश सेड टू मी, if you want to learn to read Urdu, you have to read stories, little stories, small stories, short stories. वो कहता है कि अगर तुम उर्दू सीखना ही चाहते हो तो मेरी एक एडवाइस है कि तुम जाओ और जाकर छोटी कहानियाँ आती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उर्दू की, वो लाओ और you will able to read properly, you will able to read Urdu. Then I tried this and I was able to read Urdu properly. मैंने ट्राई किया और 1 महीने बाद मैं इस काबिल हो गया था कि मैं कम अटक रहा था। पहले तो शुरू में बहुत अटका था। और मैंने कहानी कौन सी शुरू की थी आपको ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने अपनी कहानी स्टार्ट की थी होश रुबा और इन कहानियों से, जो जैसे यू कैन से बच्चों की कहानियाँ होती हैं, जिन और ये छोटे छोटे जो फिक्शन वाली कहानियाँ होती हैं, इनसे शुरुआत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी अभी भी मुझे शौक़ है, मैं रोज़ नहीं तो हफ़्ते में 1 दफ़ा एक कहानी ज़रूर पढ़ता हूँ। इसीलिए मुझे ऑफ़िस में अक्सर लोग कहते हैं यार जब देखो तो कहानी पढ़ रहा होता है। तो दिमाग को रिलैक्सेशन देना होता है, टेंशन वगैरह होती है, तो इससे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कोई कहानी पढ़ते हो। आपको थोड़ा सा आपका ज़हन फ्रेश हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं तो आप स्टोरीज़ पे फोकस करें, आप कोट्स पे फोकस करें, आप गोल्डन वर्ड्स पे फोकस करें, आप लिसनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो यही मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा और एक बात तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।